Hey, welcome back to Angira's Bathroom, you guys. Super Hits 93.5 Red FM पे with me RJ Angira of course, और हम हैं Red FM की studios में in Nama Bengaluru. And joining us today is Amrita Nayak. Amrita Nayak का कोई introduction देने की जरूरत नहीं है because everybody knows her. She sings in many languages. She is, she's a performer. She's been on reality shows. Thank you so much for joining us, Amrita. It's my pleasure. I'm privileged to join the show for Red FM. That's very nice of you to say. Okay, Amrita, सबसे पहले मैं आपको एक, I would like to start off with a question. That is, how does it feel to be in Angira's bathroom? Literally. It's really, I'm feeling very happy and I'm really excited to face all your questions. So I guess it will be a fun session. It will. So they're not questions. It's just going to be getting to know you, which I am really wanting to right here. Okay, so let's start off, with a different vibe. 3 things that you have never shared with anybody up until today. Amrita, let me be a, keeper of your secrets. Personally, I'm not a secret keeper. So I'm like an open book. So those who are close to me, they all know about my personal life or personal incidents. So I'm not someone who keeps secret about herself for a long time. Okay, anything that you want to share with us that I could perhaps get to know a little more about you? You already know all the things about me, so there is nothing personal as such. You don't know that. Okay, I'm going to start revealing all of that. But there are those 2 things that you do जब आप सुबह उठते हो. I'm not talking about brushing your teeth. They say, when I wake up, I spend at least 20 minutes with my plants. I'm a plant mom, right? So मेरे लिए बहुत जरूरी है. It helps me start my day. So are there any 2 habits that no matter where you are, you're always doing? Yeah, जब मैं सुबह उठती हूँ, the first thing I do is I have a glass of warm water. वो मेरा हर दिन का routine है. And उसके बाद obviously because I'm a singer, so my practice music का जो practice रहता है, then I start with that. So these are 2 things. Okay, very nice. As a radio jockey myself or anybody who's a content creator या फिर हम माइक में जो बात करते हैं, पहली बार जब आप माइक के सामने आते हो या फिर वीडियो के सामने आते हो, it's not like your 100th time. उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है and you're just like क्या बोलूं, कैसे देखूं type. So tell us about your first moment माइक के सामने. मेरा जो फर्स्ट मूवमेंट था माइक के सामने, I was a kid actually that time. I guess I was 6 or 7 year old. Right. So वो मैं छोटी थी, दिवाली के टाइम पे चलता है ना, जगराता टाइप का, तो मेरे पापा लेके गए थे मुझे वहां पे गाना गाने के लिए, और मुझे स्टेज पे गाने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था. तभी तक मैंने माइक में एक बार भी गाना नहीं गाया था. तो I was literally looking at my dad and my dad was like कि ऐसे बोले, यहाँ से गाना पकड़ो, यहाँ पे म्यूजिक के लिए छोड़ो, फिर यहाँ से पकड़ो. He was giving me direction from the audience and thank God it was a good performance. तभी जाके थोड़ा मुझे और confidence मिला for the next one. Okay, and that's a very cute story. Thank you for sharing that with us. Amrita has been, she sung a song actually with Jubin Nautiyal. There is a very recent song Jubin Nautiyal का जो हमारे स्टेशन में भी बज रहा है. आप फर्स्ट हैंड हमें एक्सपीरियंस बताइए कि उनके साथ काम करना कैसा होता है. Like, how did this opportunity come to you? Because I'm a YouTuber, so I was uploading frequently my covers on YouTube and all. So वहाँ पे मैंने देखा कि टी सीरीज का एक कॉन्टेस्ट आया है जहाँ पे they declared like whoever will be the winner, they'll get to sing with Jubin. So मैंने सोचा कि ठीक है, let me post a cover of हम नवा मेरे, and I was the lucky one like selected as the winner. तो मुझे लगा कि अब तो विनर तो बन गई, फिर आगे क्या होगा. Then they called me to Bombay to record the duet version of हम नवा मेरे, जो कि अभी YouTube में भी है. तो जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुआ, and I'm a like very short height girl. I'm and Juvin is like something who is very opposite. He's I guess more than 6 feet, and I was literally looking at him like this. He was like, अरे आप तो बच्चे लग रहे हो वीडियो में, लेकिन पता नहीं चल रहा था. Then we recorded the section and मुझे बहुत नर्वसनेस आ रहा था कि कैसे गाऊं एंड क्या करूं, बट द होल क्रू एंड जुवेन दे ऑल मेड मी कंफर्टेबल एंड रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे से हुआ. फिर जब शूट करने की बात आई, we both couldn't be fitted in one frame, क्योंकि हाइट की वजह से मैं ऐसे दिख रही थी, वो ऐसे दिख रहे थे.
देन फिर मुझे लाके वो एक छोटा सा स्टूल टाइप का था, वो लाके दिया, मैं उसके ऊपर खड़ी हुई, देन वी शॉट इट लाइक दिस That's एंड इट that's वाज a रियली फनी दैट टाइम. that's a behind the scenes story. I'm sure nobody knew this, and thank you for telling us that. Okay, Amrita, talking about you being a YouTuber, uh, how is the feeling? Like when I talk about how is the feeling, it's more like बहुत pressure आता है कि जनता कोई कमेंट कर रही होती है, बिकॉज एवरीबडी एक प्रोफाइल पिक्चर के पीछे बैठ के लोग कुछ भी कमेंट करते हैं आजकल, उनको एक्सेस है करने का. सो कितने फॉलोअर्स है, कितने फॉलोअर्स कम हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, व्हाट इज दैट होल फीलिंग लाइक? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? डू यू गेट स्ट्रेस्ड आउट विद इट? आई थिंक द एंटायर प्रोसेस में जो सबसे टफ पार्ट रहता है दैट इज मेकिंग द कंटेंट रेगुलरली. क्योंकि आपको कभी कभी व्यूज आता है, कभी नहीं आता है, नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, यू गेट टू get some work and you get busy with some other work, you don't get enough time, sometimes you are sick, you cannot make content for few weeks. तो उसके बीच में you have to make the content regularly because you have to keep on connecting with your fans. तो वो सबसे ज्यादा टफ रहता है कि कुछ भी हो जाए, व्यूज आए ना आए, नेगेटिव कमेंट्स आए, कुछ भी हो, आई हैव टू अपलोड रेगुलरली. तो उसके लिए जो कंटेंट बनाना पड़ता है, उसके लिए पहले ऑडियो बनाओ, फिर वीडियो बनाओ, फिर उसके एडिटिंग करना पड़ता है, फिर प्रॉपर आउटपुट बना के अपलोड करने के बाद लोगों को 2 सेकंड नहीं लगता है कुछ मतलब बुरा बोलने के लिए. करेक्ट. वो बुरा सुनने के बाद भी यू अगेन वेक अप एंड यू नेक्स्ट डे मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल कि हाँ मैं आज फिर कुछ बनाऊंगी. तो वो सबसे ज्यादा टफ रहता है आई गेस. ओके, जो गाना आपने जुबिन के साथ गाया था, ब्रेक पे जाने से पहले प्लीज हमें तो अपनी आवाज में लाइव सुना दीजिए. श्योर. तू आखिरी आंसू ओ यारा है, आखिरी तू हम, हाँ दिल अब कहाँ है जो दोबारा दीदी किसी को हम, अपनी शामों में हिस्सा फिर किसी को ना दिया, इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे किया. हम नवा मेरी तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगी तेरे बिना. हो पास लेना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगी तेरे बिना. वाओ, मैं बचपन से आपको मेरी आवाज से समझ में आएगा, मेरा बहुत बेस वॉइस है, और हम आई एम बंगाली राइट, तो हमें जबरदस्ती क्लासिकल म्यूजिक सिखाया गया, भले ही आपको आए ना आए उनको फर्क नहीं पड़ता. एंड मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है, तो उनकी आवाज बहुत ऊंचा, लाइक जैसे इट गोज अप, और मुझसे कैसे भी नहीं होता. एनीवे, thank you for that, Amrita, and what a lovely song. Congratulations on that and more work to you. Apart from all the प्यार and दुलार जो आपको घर पे मिल रहा होगा as an artist, right? How difficult or easy has it been इस pandemic में? सबको पता है द ह्यूजली जो अफेक्टेड हुआ है जो इंडस्ट्री, दैट इज लाइक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री. चाहे आप म्यूजिक इंडस्ट्री ले लो, फिल्म इंडस्ट्री ले लो, या फिर लाइव इवेंट इंडस्ट्री ले लो, सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट हुआ है पैंडेमिक में वो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ही हुआ है. एंड बिकॉज आई ऑल्सो वर्क, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सो आई ऑल्सो वर्क इन एन एमएनसी. सो समवट मुझे इतना पता नहीं चला क्योंकि आई गॉट बिजी विद वर्क एंड ऑल. एंड यहाँ पे मैं अभी होम टाउन में हूँ बिकॉज आई नॉर्मली आई स्टे एट हैदराबाद बिकॉज ऑफ माई जॉब, एंड वहाँ पे शोज वगैरह सब चलता है. बट नाउ ड्यू टू दिस पैंडेमिक आई एम एट माई होम टाउन, एंड यहाँ पे भी मैं इंडस्ट्री में काम करती हूँ, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग शोज वगैरह थोड़े बहुत चल रहे हैं, शूट्स वगैरह चल रहे हैं. तो मुझे इतना पता नहीं चला है, बट पर्सनली आई नो जितने भी लाइव म्यूजिशियंस हैं या फिर लाइव आर्टिस्ट हैं जो कि मतलब प्योरली
इवेंट इंडस्ट्री से या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हाँ मतलब इनकम करके अपना घर चलाते हैं, उनका जो लाइफ है वो बहुत इम्पैक्ट हुआ है। यहाँ तक कि लोगों के घर में अभी खाने के लिए भी कुछ पैसा नहीं है उनके पास, सो दे आर लाइक ह्यूजली मतलब अफेक्ट हुआ है उनका लाइफ। तो आई गेस बहुत जल्दी ये सब ठीक हो जाए ताकि एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल। नॉर्मल, द न्यू नॉर्मल परहैप्स। what is the message जो आप किसी न्यू यूट्यूबर को देना चाहेंगी? because as far as I know you've been awarded the golden play button in that thing from YouTube. So a lot of people, मैंने देखा है कि पैंडेमिक में स्पेशली, क्योंकि हम ये पैंडेमिक की और लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, हर कोई आके अपना यूट्यूब बना रहा है, हर कोई बाहर आ रहा है, everybody is on the internet. So what is the advice that you would give somebody who's younger, who's fresh into the industry? According to you, what should they do? लोगों को दो चीज बहुत मतलब इनिशियली मतलब टफ लगता है। पहला तो स्टार्ट करना, उनको लगता है कि मेरे पास तो इक्विपमेंट्स नहीं है, कैमरा नहीं है, ऑडियो सेटअप नहीं है, मैं स्टार्ट कैसे करूं। सो देयर इज नथिंग, ऐसा कुछ होता नहीं कि मेरे पास ये होगा तभी मैं स्टार्ट करूंगी। Correct. द राइट टाइम इज नाउ। तो अब अगर आपको लगता है कि आपके पास टैलेंट है, यू शुड स्टार्ट राइट नाउ। एंड उसके बाद अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो यूट्यूब में द बेस्ट थिंग टू स्टे ऑन इज कीपिंग योरसेल्फ रेगुलरली, मतलब कीपिंग योरसेल्फ अपडेटेड रेगुलरली। तो Consistent, मैं आपको mostly. कीपिंग द कंसिस्टेंसी इज द की। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो, भले ही आपको नेगेटिव फीडबैक्स मिले या फिर व्यूज ना आए, मेक योरसेल्फ रेडी कि मुझे कंटेंट रेगुलरली बनाना है, दैट्स द की। तो उसके साथ आप आगे बढ़ोगे तो आई गेस डेफिनेटली विल आल्सो गेट सक्सेस। Okay, going back to reality shows, 2016 में आप सारेगामा में एक कंटेस्टेंट थी, आपने पार्टिसिपेट किया था। रियलिटी शोज के बारे में मुझे एक डाउट है यार, दैट इज सब कहते हैं कि भाई ये जितना रियल हो सकता है रियल है, लेकिन सच सच बताइए अमृता, ये रियलिटी शोज कितने रियल होते हैं? क्योंकि पूरी दुनिया ओके ओके, टेल मी मोर। आई ओपनली से दैट, क्योंकि मुझे पहले भी बहुत बार पूछा गया है, एंड आई ओपनली से दैट कि रियलिटी शो में रियलिटी होता ही नहीं है। तो वहां पे मतलब और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दे डू पार्सलिटी एट एवरी स्टेप। हाँ, जब तक आप टॉप 100 में या टॉप 50 में पहुंच जाते हो, तब लाइक इट्स लाइक कि मतलब हर एक सिंगर जो होता है ना, वो एक से बढ़कर एक होता है। सो दे कैन सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम, बट वो उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको लगता है कि जिसको लेके हमारा टीआरपी अच्छा आएगा। So once you are in top 40, 50 or top 30, then you should also consider yourself कि हाँ, I'm capable of doing good, I'm capable of being a good singer। ऐसा नहीं है कि आप top 15 में नहीं आए so you are a bad singer। So keep yourself motivated कि मैं यहाँ तक आई हूँ, मतलब मेरे पास कुछ तो है। अच्छा, आप तो हिंदी फिल्म्स देखती होंगी, करेक्ट? जी। आपका सबसे फेवरेट हिंदी फिल्म कौन सा है? कोई डायलॉग वायलॉग आपको आता है? लाइक डू यू मिमिक समबडी? I do, but मतलब मैं इतना मूवी देखती हूँ, आई एम अ मूवी फ्रीक एक्चुअली। तो मतलब फेवरेट जो फिल्म्स है उसका एक लंबा लाइन है, मतलब मैं एक ऐसे पिक करके नहीं बोल सकती। सो आई लाइक लॉट ऑफ मूवीज, लाइक अगर ऑल टाइम बोलूं, देवदास, थ्री इडियट्स, मोहब्बतें, एंड आई लाइक एवरी जेनर ऑफ मूवीज, मतलब वो एक्शन हो, थ्रिलर हो, हॉरर हो, कॉमेडी हो, रोमांटिक हो, आई लाइक ऑल द जेनर्स। तो आई डोंट हैव अ पर्टिकुलर मूवी इन माइंड। Who is the one singer that you follow? As an artist yourself, हम सबके कोई ना कोई आइकन्स रहते हैं या कोई ना कोई आइडल्स रहते हैं। आपके आइडल कौन है? जब मैं बचपन में गाना सुनती थी तब आई रियली फॉलोड लता जी। देन थोड़ा मतलब जब टीन एज तक पहुंची, देन आई फॉलोड श्रेया घोषाल। So I follow these two icons. If you had a choice between two superpowers, Amrita, being able to fly or being able to become invisible, कौन सा लेंगी आप? Fly. Fly. Where do you want to fly? ऐसे ही मतलब आसमान में उड़ना है बस। पेट्रोल का खर्चा भी बच जाएगा। पेट्रोल, प्लेन, ट्रैवलिंग का खर्चा बच जाएगा। सीरियसली, पैंडेमिक हो ना हो, मैं पहुंच जाऊंगी। Yes. Okay. Now the second question that I have is, if you were shipwrecked on a deserted island, एक आइलैंड में है जहाँ पे आपको खाना पानी मिल गया, ऐसी कौन सी दो चीजें आप अपने साथ ले जाएंगे अमृता? मोबाइल, of course, there is no doubt. Okay, mobile and Okay, mobile and my one of my musical instrument maybe.
ओके, एक बात बताइए अमृता, जब आप एक आइलैंड में जा रही है, हाँ, तो वहां पे करंट नहीं है, आपको खाना पानी मिल रहा है, मैंने नहीं कहा था करंट मिलने वाला है, तो कहाँ चार्ज करेगी अपना फोन? आपने बोला नहीं था कि वहां पे करंट नहीं है। Okay, good one. Amrita, we are at the end of today's show. Thank you so much for joining us. But I know that, like we spoke, you have a new project coming up. मुझे पता है बहुत सारे rules होते हैं. There is a disclosure agreement. But just for my sake, do you want to give us 2 lines for all our listeners today? एक कन्नड़ा फिल्म मेरी आ रही है, मतलब नेक्स्ट ईयर इट विल रिलीज. द फिल्म नेम इज शुगर फैक्ट्री. Okay. तो कन्नड़ के बहुत अच्छे अच्छे स्टार्स हैं उस फिल्म में. सो उस फिल्म में मैंने एक डुएट गाना गाया है और वो गाने का नाम है जहांपना. सो एज ऑफ नाउ द ऑडियो इज नॉट रिलीज्ड, so I cannot sing the entire song, so I'll just sing one line. जहांपना जहांपना करियुवे निन्ना पुनः पुनः. जहांपना जहांपना करियुवे निन्ना पुनः पुनः. होया होया होया. So it's something like that. Wow, I'm really looking forward, and so are all your fans. Thank you so much, Amrita, for taking time out and joining me in my bathroom. Please follow all your COVID rules. This is a big moment for us. Third wave ko aane nahi denge. That's something that the whole country is wishing for. Amrita, आपका कोई message है हमारे सारे viewers and आपके fans के लिए? I'll also say the same thing कि जितना भी गवर्नमेंट का जितना भी रूल्स है, कोविड रूल्स, प्लीज फॉलो देम. डोंट लेट द थर्ड वेव कम अगेन. सो प्लीज हम कर सकते, only we can do this, so let's break the chain. On that note, like, share, comment on this video. Super Hits 93.5 Red FM. बजाते रहो. Red FM 93.5